Assalamualaikum students. I hope you will be fine. In today's video we will discuss the translation of unit number 1 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam मुजस्मे इंसाफ. Students, in this video I'll tell you the meanings of the difficult words. With the help of these meanings you can translate the whole unit by your own self. Okay, now let's begin with the very first paragraph. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अलावा अपनी समाजी ज़िंदगी में भी अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात मुबारका से रोशनी हासिल कर सकते हैं. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नौए इंसानी की खातिर हर शोबाए ज़िंदगी में अमल करने के लिए नहायत आला और शानदार मेयार कायम फरमाए हैं. Students, in this paragraph here the word perfect means मुकम्मल, model mean नमूना, अटेन मीन हासिल करना, गुडनेस अच्छाई, पाइटी तकवा या परहेजगारी. देन द वर्ड इज़ सीक मीन तलाश करना, गाइडेंस रहनुमाई, अचीव हासिल करना, परफेक्शन मीन्स कमाल. देन स्पिरिचुअल मीन्स रूहानी, मैनकाइंड इंसानियत. नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 2. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह कादिर मुतलक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मसनफ़, मजाज और आदिल नहीं हो सकता. मनसफ मजाज मीन मुनसफाना. As a young trader he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. एक नौजवान ताजर होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर एक ईमानदार, मनसफ और आदिल कारोबारी इंसान की नेक नामी हासिल की. He always had fair and just dealings with all people. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तमाम लोगों के साथ मनसफाना लेन देन करते थे. When the Kaaba was being constructed there arose a dispute among the people regarding the black stone. जब काबा तमीर किया जा रहा था तो हजर अस्वद के मुतालिक लोगों के दरमियान झगड़ा उठ खड़ा हुआ. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को नस्ब करने के लिए नहायत मनसफाना तजवीज़ पेश की. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. इस तजवीज़ ने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें एक कबायली लड़ाई से बचा लिया. Students, in paragraph number 2 here the word practically means अमली तौर पर, equitable means मनसफाना, then reputation means शोहरत, then the word is fair means आदिल, dealings लेन देन, then the word is dispute mean झगड़ा, regarding के मुतालिक, devised सलाह देना, मशवरा देना.
Then the word is tribal means कबाइली, conflict mean लड़ाई. Now move to paragraph number 3. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed और race. मदीना के सरबराह होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात के फ़ैसले मेरिट पर, इंसाफ और असूल इंसाफ से, रंग, मज़हब या नस्ल के लिहाज के बगैर किए. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. एक दफ़ा एक कुरैशी औरत चोरी की मुजरिम पाई गई. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. कुछ लोगों ने ख़ानदान कुरैश की इज़्ज़त बचाने की गर्ज से उसको सज़ा से बचाना चाहते थे. They asked Hazrat Usama bin Zaid रज़ियल्लाहु ताला अन्हो to intercede. Now move to next page. On her behalf. उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से दरख्वास्त की कि वो उसकी तरफ से सिफारिश करें. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उसको मुआफ़ कर दें. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सैड बनी इसराइल वाज ruined because of this. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नाराज़गी से फरमाया बनी इसराइल इस वजह से तबाह हो गए. They applied law to the poor and forgave the rich. वो गरीबों पर कानून लागू करते थे और अमीरों को मुआफ़ कर देते थे. Students, in paragraph number 3, the word justice means इंसाफ, equity means असूल इंसाफ, irrespective means बिला लिहाज, क्रीड मज़हब, रेस नस्ल, गिल्टी मुजरिम, स्टीलिंग चोरी, पनिशमेंट सज़ा. देन द वर्ड इज़ इंटरसीड मीन्स फारिश करना. नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज. देन द वर्ड इज़ फ्यूरियसली नाराज़गी से, रूइंड तबाह हुए, अप्लाइड लागू किया, लॉ कानून. नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 4. ड्यूरिंग द sermon an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there. दुरान खुतबा एक अंसारी बनु सालबा के कुछ आदमियों को वहाँ बैठे देखकर खड़ा हो गया. stood up and pointed toward them and said, और उनकी तरफ इशारा किया और कहा, ओह मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली. इनके अबाव अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को जान से मार दिया था. वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर डैट. हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में उनमें से एक को फांसी लगवा दें. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन. बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता. स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ नंबर 4, हियर द वर्ड सरमन मीन्स खुतबा. देन द वर्ड पॉइंटेड मीन्स अशारा किया, एंसेस्टर्स अबाव अजदाद, अपील दरख्वास्त करना, रिवेंज बदला. नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 5. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे कि यहूदी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उनके फ़ैसले करते थे. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you
Either judge between them or decline to interfere. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते थे। अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ या तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया करें या मुदाखलत करने से इनकार कर दें। इफ़ यू डिक्लाइन दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट। अगर आप इनकार करते हैं तो वो आपको ज़रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज इन इक्विटी बिटवीन दैम। अगर आप फ़ैसला करें तो उनके दरमियान इंसाफ के असूलों के मुताबिक फ़ैसला करें। फॉर अल्लाह लव्स दोज़ हु जज इन इक्विटी। क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता है जो इंसाफ के असूलों के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ नंबर 4 हियर द वर्ड वेल नोन मीन्स मशहूर, ज्यूज़ मीन यहूदी, बिटर सख्त, एनिमीज़ दुश्मन। देन द वर्ड इज़ जूइश मीन यहूदियों का, स्ट्रिक्टली सख्ती से, कमांडमेंट हुक्म, डिक्लाइन इनकार करना, इंटरफेयर मुदाखलत करना। देन द वर्ड इज़ हर्ट नुकसान पहुंचाना। नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 6. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self and one's family too or relations. इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि उसको तमाम हालात में कायम रखना चाहिए, खा ये आपके अपने ख़िलाफ़ या अपने ख़ानदान या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ जाता हो। All of his life, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम judged other people's affair with justice and told his companions to be just. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर दूसरे लोगों के फ़ैसले इंसाफ के साथ किए और अपने सहाबा को फरमाया कि आदल बने। It is reported by हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु that Allah's Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said to him. हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने उनसे फरमाया। When to, now move to next page. Men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. जब दो आदमी तुम्हारे पास फैसले के लिए आए तो दूसरे के दलाइल सुने बगैर कभी भी किसी एक के हक में फ़ैसला मत दो। It is then mostly like that you will know the truth. तब इस बात का ज़्यादा अमकान है कि तुम्हें सच्चाई का इल्म हो जाएगा। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड अल्लाह's रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saying. हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, Any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला के पैगंबर को ये कहते हुए सुना, कोई हुक्मरान या जज जो गरीबों, हाजतमंदों और मुफलिसों पर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है तो वो जब हाजतमंद और मुफलिस हो जाता है तो खुदा उस पर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। इन दिस पैराग्राफ हियर द वर्ड इज़ जजमेंट मीन्स फैसला, देन द वर्ड इज़ आर्ग्यूमेंट्स दलाइल, लाइकली का अमकान है, डेस्टिट्यूट क्लाश। Now move to paragraph number 7. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, he proclaimed, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, if I owed something to anyone or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. अगर मैंने किसी का कुछ देना है या मैंने किसी से नाइंसाफ़ी की है या किसी की जायदाद या वक़ार को नुकसान पहुंचाया है
तो मैं बज़ाते खुद, मेरा वक़ार, मेरी जायदाद हाजिर है। ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, तो वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी छा गई। ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू दिरहम्स विच वर पेड टू हिम, सिर्फ एक शख्स ने कुछ दिरहमों का तकाजा किया जो उसको अदा कर दिए गए। इन दिस पैराग्राफ हियर द वर्ड इज प्रोक्लेम्ड मीन्स ऐलान फरमाया, ऑब्ड मीन कर्ज लिया, देन द वर्ड इज रॉन्ग्ड नाइंसाफ़ी, प्रॉपर्टी जायदाद, रिवेंज बदला इंतकाम, साइलेंस खामोशी, पेड अदा किया। नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 8। Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी मिसाल से साबित कर दिया कि कोई भी इंसाफ के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्तकिल मजाज ना हो सका। इवन इफ़ इट वाज अगेंस्ट his own interest or the interest of those who were near and dear to him, हत्ता कि खा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुफाद या उन लोगों के मुफाद के ख़िलाफ़ ही क्यों ना था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार और अजीज़ थे। He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस मुकदमे का फ़ैसला जो दोस्त या दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया बिला खौफ और बग़ैर तरफदारी के किया। A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. हर ऐसी अहमियत का हामिल शख्स वक्त और फासलों की रुकावटों को अबूर कर जाता है। People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. हर उम्र के लोग अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों में अपनी रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उस पहलू को साफ तौर पर बयान करता है। Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत का उम्मीदवार हो बेहतरीन नमूना है। स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ नंबर 8 हियर द वर्ड प्रूव्ड मीन्स साबित किया। ओके, देन द वर्ड इज़ फिर्म मुस्तकिल, इंटरेस्ट फ़ायदा, फॉ मीन्स दुश्मन, देन द वर्ड इज़ फियर डर या खौफ, फेवर तरफदारी, मैग्नीट्यूड अहमियत, ट्रेसेंड्स मुआवरा हो जाता है, बैरियर्स रुकावटें, देन द वर्ड इज़ क्लियरली साफ तौर पर, मेंशंस जिक्र करना, एस्पेक्ट पहलू या रुख। Now students, I hope the translation of unit number 1 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujassme insaf. Now it's cleared. Okay, and if there is any confusion in your mind regarding this one, okay, then you can ask in comment section, and if you like my video then share it with your friends and also subscribe my YouTube channel Malik Science Academy and press the bell icon for notifications. You can also follow me on Instagram Malik Science Academy. Okay, we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.